Sandeep Naik, the BJP's district chief in Navi Mumbai and a two-time MLA, has just jumped ship to the Sharad Pawar-led Nationalist Congress Party. Why? Well, because the BJP denied him a ticket for the upcoming elections from Belapur. Earlier on Tuesday, Naik tweeted his resignation letter addressed to the BJP state president Chandrasekhar Bawankure. In his tweet, he said, I have submitted my resignation from the position of BJP Navi Mumbai district president and from the party's membership to state president Shri Chandrasekharji Bawankure. I express my gratitude to the Bharatiya Janata Party for the trust it placed in me. Sounds diplomatic, right? But this move has certainly shaken things up in Navi Mumbai's political scene. Sandeep Naik is now widely expected to be the NCP SP candidate for Belapur. In fact, his induction into the party was no small affair. He was welcomed by NCP State Chief Jayant Patil at the Vishnudas Bhave Auditorium in Vashi. But here is where it gets even more interesting. Sandeep's father, Ganesh Naik, a former Maharashtra minister, is still very much a part of the BJP and is the party's candidate from the neighboring Airoli constituency. Yes, you heard me right. The Naiks are now on opposite sides of the political spectrum. Let's rewind a bit. In its first list of 99 candidates for the Maharashtra Assembly elections, the BJP chose incumbent MLA Manda Mhatre as its candidate for Belapur, effectively sidelining Sandeep Naik. Now, Sandeep Naik is no stranger to the political game. He has won twice from the Airoli constituency as a member of the undivided NCP in 2009 and 2014. But in 2019, he made a strategic shift to the BJP and decided to take a step back from contesting the assembly elections. It seems like that break did not last long because he had already declared his intention to contest from Belapur before the BJP's list was announced. And what about his father Ganesh Naik? Well, Ganesh Naik had already made it clear that his son is free to make his own political decisions. In fact, he even said that he wouldn't stop Sandeep if he chose to leave the BJP. With this move, the upcoming Belapur contest just got a whole lot more interesting. Will Sandeep Naik switch to the NCP SP give him the boost he needs? Or will the BJP's decision to field Manda Mhatre pay off? But before that, listen in to what Sandeep Naik said on him joining the Sharad Pawar's NCP. सबका आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे एक व्यक्ति के लिए इतने सभी नवी मुंबई बेलापुर मतदार संघ के सभी नागरिक जो अलग अलग भाषा के, अलग अलग धर्म के हैं, अलग अलग प्रांत के हैं, वो आज मेरे लिए यहाँ पे आए। सीनियर सिटीजन आए, महिलाएं आए, युवक भी आए और उसके साथ उनका सबका नेतृत्व करने वाले सभी ज्येष्ठ पदाधिकारी, उसमें महापौर है, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन है, सभागृह नेते हैं, काफ़ी सारे नगर सेवक हैं और पूर्व पदाधिकारी, उन्होंने भी मुझे आज एक आवाज़ में उन्होंने मुझे सबने सपोर्ट किया। ये उनके इन्होंने जो मेरे प्रति जो विश्वास व्यक्त किया है, जितने भी आभार उनके मैं मानूं उतने कम है। सभी पदाधिकारी, नवी मुंबई के नागरिक, उनका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। नाइक फैमिली के लिए ये कहा गया है कि एक फैमिली से 2 टिकट नहीं दिया जाएगा, वहीं पे जो है आशीष शेलार और उनके भाई को टिकट दिया गया, तो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन नहीं दिख रहा है। देखो कि टिकट मिलना या चुनाव लड़ने के लिए मिलना या मैं विधायक के तौर में चुन के आऊँ, इसलिए मैंने ये निर्णय नहीं लिया। देखिए कि ये शहर का हित क्या है, इस शहर का नेतृत्व करने वाले कार्यकर्ते, पदाधिकारी, लोक प्रतिनिधि, उनकी मांग क्या है और इस शहर की मांग क्या है, ये हमें समझना चाहिए। ये शहर सुरक्षित रहना चाहिए। आज ये शहर जिस मुकाम पे है, आने वाले समय में ये शहर बढ़ रहा है, इस शहर की आबादी बढ़ रही है और इस शहर की सुविधा भी उस तरीके से बढ़नी चाहिए। अच्छे निर्णय शहर में होने चाहिए, इस शहर का शोषण नहीं होना चाहिए, एक गलत और बाहर नहीं जाने चाहिए। इस धारणा के साथ आज सब लोग यहाँ पे जुड़े और इस शहर के हित के लिए आप निर्णय लो, ऐसी धारणा उन्होंने व्यक्त की। अच्छे विकास के लिए आज ये निर्णय में ले रहा हूँ। सर, 2019 में जब आप पार्टी छोड़े थे, पहले आप गए थे, उसके बाद आपके पिताजी गए थे। इस बार भी पहले आपने पार्टी छोड़ी, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ दिन के बाद गणेश नाइक जी भी आपके साथ आ जाए? देखिए कि ये इस बात का जो एक्सप्लेनेशन है, वो जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार साहब के जो प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल साहब ने भी कहा कि हमें जब भी मालूम पड़ा कि आपके ऊपर अन्याय हुआ है, आपको अपमानित किया गया है स्थानिक आमदार के माध्यम से, ऐसे समय में आपको न्याय देने के लिए हम आपका स्वागत करेंगे, ऐसी भूमिका उन्होंने रखी। और ये निर्णय मैंने और बेलापुर मतदार संघ के नगर सेवक
और हमारे पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने लिया है, और ये मेरे मेरे लिए ये निर्णय सीमित है। 2019 में हमने भारतीय जनता पार्टी पक्ष में प्रवेश किया। उस समय सबकी अपेक्षा थी कि जो हमें बोला गया है उस तरीके से सब चीज़ें होंगी, लेकिन उस समय कुछ दिक्कतें आई और नवी मुंबई में मुझे रुकना पड़ा। मैं ये सोच के रुका कि आने वाले समय में नवी मुंबई शहर के विकास के लिए कुछ कदम बढ़ाए जाएंगे, इस शहर का विकास होगा, कुछ अच्छे निर्णय होंगे, और वो निर्णय लेते समय हमारे कार्यकर्ताओं का सम्मान किया जाएगा, उनको न्याय दिया जाएगा। बेलापुर मतदार संघ में जीत हासिल करने के बाद में उसके बाद ही निकालों के बाद जो लोक प्रतिनिधि, जो आमदार थी, उन्होंने हमें और हमारे कार्यकर्ताओं को अपमानास्पद यहाँ पे बातें कही, हमारे लोगों को अपमानित किया। उसके बावजूद नवी मुंबई शहर के बारे में जो हित के निर्णय लेने चाहिए वो किसी को भी विश्वास में न लेते हुए वो निर्णय लिए गए। एज अ संगठन की दौर से मैं काम करता रहा, पक्ष के माध्यम से आए हुए काम, पक्ष के माध्यम से लड़े हुए सभी चुनाव, उसमें हमने जीत हासिल की, और 2024 में लोगों का जो मन में है, जो कार्यकर्ताओं के मन में है, उस तरीके से निर्णय होगा ये हम समझ रहे थे। लेकिन 2024 में भी मेरा जो उम्मीदवारी है उसको नकारा गया। उसके बाद में कार्यकर्ताओं ने ये भावना व्यक्त की कि जो व्यक्ति, जो लोक प्रतिनिधि कार्यकर्ताओं को सम्मानित नहीं कर रहा है, ये शहर के हित की बात नहीं कर रहा है, तो उसलिए हमें निर्णय लेना पड़ेगा, और इसलिए एक मेळावा का आयोजन करना चाहिए। इसलिए आज इस मेळावे का आयोजन किया गया। सभी कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे कहा कि हमें चुनाव लड़ने चाहिए। उसी दौरान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार साहब जी के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल साहब का मुझे फ़ोन आया कि हम आपका हमारे पार्टी में स्वागत करते हैं। उनको मैंने कहा कि मुझे मेरे सभी कार्यकर्ताओं से बात करनी पड़ेगी, मुझे नवी मुंबई के नागरिकों से बात करनी पड़ेगी, और आज इस बैठक में सभी ने उनका जो कॉल है, उनका निर्णय है कि हमें शरद चंद्र पवार साहब के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में हमें जाना चाहिए, क्योंकि उनका अनुभव हमारा अच्छा है। हमारे शहर के हित के लिए उन्होंने काफ़ी जो निर्णय लिए हैं, ये शहर के हित के लिए मददगार साबित हुए हैं। इस शहर के विकास के लिए उन्होंने हमेशा ही इस नवी मुंबई शहर को सपोर्ट किया है, नेतृत्व को सपोर्ट किया है, और हम जहाँ पे जा रहे हैं हम प्रवेश नहीं कर रहे, हम उसी घर में वापस जा रहे हैं, ऐसी धारणा हमारी हो सकती है। ऐसी सभी भावना व्यक्त करने के बाद में आज प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल साहब यहाँ पे आए, और मेरे साथ मेरे सभी 28 कॉरपोरेटर, सभी पदाधिकारी, और विशेष रूप से इस नवी मुंबई शहर में रहने वाले हर प्रांत के नागरिक, हर राज्य के नागरिक, महाराष्ट्र के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के नागरिक, उन्होंने नागरिक के तौर पे एक विश्वास व्यक्त किया कि एक अच्छा निर्णय होना चाहिए, जो निर्णय हमारे शहर के हित के लिए हमें मददगार है।